کسی سے دور جانے میں بھلا کیا دیر لگتی ہے، کسی سے دور جانے میں بھلا کیا دیر لگتی ہے، بہانہ ایک بنانے میں بھلا کیا دیر لگتی ہے، کسی کو چھوڑ دینے میں دلیلوں کی ضرورت کیا، کسی کو چھوڑ دینے میں دلیلوں کی ضرورت کیا، فقط انگلی اٹھانے میں بھلا کیا دیر لگتی ہے، پھر اس پہ بات کیسی ہو جو نیت میں فطور آئے، پھر اس پہ بات کیسی ہو جو نیت میں فطور آئے، یعنی فتنہ جگانے میں بھلا کیا دیر لگتی ہے، وکالت خود ہی کرنا ہو تو منصف خود ہی ہو جانا، وکالت خود ہی کرنا ہو تو منصف خود ہی ہو جانا، تو یوں دامن چھڑانے میں بھلا کیا دیر لگتی ہے، فقط چند ایک وعدوں پر کسی کو ٹال رکھا ہو، فقط چند ایک وعدوں پر کسی کو ٹال رکھا ہو، تو وعدے ٹوٹ جانے میں بھلا کیا دیر لگتی ہے، کسی کو توڑ دینا ہو، کسی کو مات دینی ہو، تو بے پر کی اڑانے میں بھلا کیا دیر لگتی ہے، اگر دل کے لبھانے کو فقط ایک کھیل کھیلا ہو، اگر دل کے لبھانے کو فقط ایک کھیل کھیلا ہو، کسی کو بھول جانے میں بھلا کیا دیر لگتی ہے۔ نیو کاسٹل کرسچن نیٹ ورک NCN ٹی وی کے پروگرام کتابوں پر تبصرہ میں شمسن جاوید آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور حرف لامکاں کے مصنف معروف شاعر و ادیب جناب عارف پرویز نقیب صاحب کو ان کی شاندار کاوش پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے ہم ان کو کتابوں پر تبصرہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ شامل ہیں، سب سے پہلے میں ان کا تعارف کرواتا چلوں کہ بھارت سے ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر ہاجرہ نور زریاب صاحبہ، جو مشہور ادیب اور شاعرہ ہیں، ایم اے اردو، ایم اے انگلش، ایم اے فارسی، BEd، LLB، BSM کے علاوہ وہ درس و تدریس سے وابستہ ہیں۔ آنے والی شعری مجموعہ چاند کے گرنے پر ان کی ایک خوبصورت کاوش آنے والی ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان ہیں جناب حمید ہنری صاحب، جو سر سید احمد خان یونیورسٹی انجینئر اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں۔ وہ شاعر، ادیب اور صحافی ہیں، بہت سارے اخبارات، بہت سارے میگزین میں وہ لکھتے ہیں، عدالت کے فرائض بھی سر انجام دیتے ہیں۔ ان کے علاوہ بہت سارے ایک جو سوشل ہیومن رائٹس ایسے کانفرنس، ایسے پروگرام ہوتے ہیں، ان کی موجودگی کے بغیر ایسے ہی ہے جیسے وہ سونے ہوتے ہیں۔ اور پھر ہمارے ساتھ المشہور شاعرہ آئرن فرز صاحبہ ہیں کراچی سے، اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر علی عمران صاحب ہیں، وہ لاہور سے ہیں، جو بڑے خوبصورت لب و لہجے کے مالک ہیں، بے باک ادیب اور شاعر ہیں۔ تو ایک دفعہ پھر ہم حرف لامکاں کے رائٹر کو خوش آمدید کہتے ہوئے ہم کچھ چاہیں گے کہ ہم ان سے کچھ ان کی شخصیت کے بارے میں یا ان کا یہ جو شعری سفر ہے اس کے بارے میں آپ پوچھے گا۔ تو عارف صاحب، کیسے آپ کے مزاج شریف کیسے ہیں؟ جی کا شکر ہے جی، بالکل ٹھیک۔ ہمارے ناظرین اور میں بھی چاہوں گا کہ آپ ضرور یہ بتائیے گا اپنے ناظرین کو کہ یہ جو آپ کا شعری سفر رہا ہے یہ کیسا رہا، وہ کہ آپ نے 8th کلاس سے یہ لکھنا شروع کیا تھا،
لیکن ذرا مختصر بتائیے گا تاکہ ہم آگے بات کو بڑھا سکیں. جی جی بہت شکریہ. آپ نے بتا دیا کہ 8th کلاس سے سفر شروع ہوا تھا ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ, اور پھر اسکول میں میرے جو ماسٹر صاحب تھے البرٹ جوزف صاحب, انہوں نے میری پیشرے فرمائی, اور اس کے بعد پھر کے آر ریاض صاحب سے میں نے رہنمائی لی, اور اس کے بعد وہ لاہور چلے گئے تو میں بھی لاہور ایف سی کالج میں آ گیا. اس کے بعد تعلیم مکمل کرنے کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے میں کراچی آیا, تو یہاں پر روشن عشرت صاحب جو تھے انہوں نے میری رہنمائی فرمائی, اور میں نے ان سے مشاورت سخن لی, اور یوں آج میں آپ کے سامنے ہوں. جی میں ایک اور بھی یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی یہ خوبصورت کتاب, چونکہ آپ کا سفر اگر ہم دیکھتے ہیں تو کافی لمبا سفر ہے, لیکن یہ کتاب دیر سے آنے کی وجہ کیا تھی؟ آپ کا شعری مجموعہ اتنا ٹائم کیوں لیا؟ بڑا تلخ سوال ہے, لیکن میں جواب دینا پسند کروں گا کہ ہمارے ہاں ہم جیسے جو لوگ ہوتے ہیں جو روز کا نوالہ کما کر کھاتے ہیں, اور ان کو تسلیم بھی کر لیا جاتا ہے, لیکن ایسا کوئی ادارہ, کوئی ایسے لوگ موجود نہیں ہیں جو ان کی کتابوں کو شائع کرنے کا سبب بنے. ایک تو یہ. نقیب صاحب, یہ واقعی جو ہماری سوسائٹی کہہ لیں یا ہمارا ملک یا ایسا المیہ ہے کہ وہ اپنے ادیب یا شاعر کی انکریج کرنے کے لیے ایسے ادارے نہیں. میں یہ بھی کہنا کہ اس کتاب کو جب چھپوانے کا خیال آیا تو میری بہن نور نورین نے آگے بڑھ کر جو ہے وہ میری حوصلہ افزائی کی, اور اس کتاب کو چھپوانے میں, اس کو شائع کروانے میں انہوں نے میری مدد اور تعاون فرمایا. جی میں نقیب صاحب یہی چاہوں گا کہ ہم نے بھی ایک مہم شروع کی تھی کہ ان کا آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کی جو کاوشیں ہیں ان کو اشاعہ کیا جائے. اس طرح ناظرین, جس طرح کے ادیب کسی بھی ملک و قوم کی تعمیر اور ترقی اور مذہب معاشرے کی تشکیل میں ان کا ایک بڑا اہم رول ہوتا ہے, ان کی سب شدہ تحریریں تاریخ کا حصہ بن جاتی ہیں جو قوموں کے لیے قیمتی اثاثہ سے کم نہیں, اور آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بن جاتی ہیں. حرف لامکاں یقیناً ادب کی دنیا میں ایک عظیم اضافہ ہے, کیونکہ ادب قوموں کے مزاج, امنگوں اور جذبات کا آئینہ دار ہوتا ہے. ایک اچھا شاعر اور ادیب جس طرح اپنے احساسات, جذبات اور اپنے گرد و نواح کے حالات و واقعات کی عکاسی کرتے ہیں, وہ اپنے عہد کی بنیادی جو ایک تخلیقی ہوتا ہے اس کو زیر بحث لاتا ہے, اس تمام موضوع کو, اور عصری تقاضوں کو اپنی تحقیقات میں جس انداز سے سمیٹتا ہے, اس سے اس کے عہد کو سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے. تو یہی میں آگے بڑھوں گا, یہی پوچھوں گا حمید ہنری صاحب, جنہوں نے حرف لامکاں کیا جو ایک پیش لفظ کہہ لیں یا اس کو کہہ لیں کہ اس پہ اپنا تقریر لکھی, تو آپ اس ظاہر ہے کہ آپ کے پاس مسودہ بھی ہوگا, آپ نے اسٹڈی بھی کی ہوگی, ویسے بھی آپ کافی مدت سے ان کو جانتے ہیں نقیب صاحب کو, لیکن اس وقت میں چاہوں گا کہ آپ ان کی شاعری کے بارے میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے کیسی ان کی شاعری کے بارے میں کیا دیکھا یا کیا سنا, کیا پڑھا. جی شکریہ سیمسن صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور آپ کے چینل کو, کہ آپ کے چینل کے توسط سے بہت سارے لوگ جو ہیں متعارف ہو رہے ہیں, ان کا کام متعارف ہو رہا ہے, اور خاص طر بہت سارے ایشوز ہیں, سماجی, سیاسی اور دیگر ایشوز ہیں جن پر آپ وقتاً فوقتاً پروگرام کرتے رہتے ہیں. تو یہ جو رائے عامہ ہموار کرنے کا سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے یہ بہت اچھا ہے, اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. اور جس پابندی سے اور ایک تسلسل کے ساتھ آپ اس پروگرام کو چلا رہے ہیں اس کو داد دیے بغیر میں نہیں رہ سکتا. تو ایک بار دوبارہ شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اس سلسلہ پروگرام میں. سیمسن صاحب, عارف صاحب کو میں کم و بیش میرا خیال 30-40 سالوں سے جانتا ہوں, اور یہ وہ زمانہ تھا
जब आरिफ नौजवान थे, कराची में आए थे, परवेज अमर, आरिफ नकीब, इशरत अली इशरत, एक बड़ा दोस्तों का एक जमघटा था जिसमें हम जिंदगी गुजारते थे। बाबा नजमी भी हुआ करते थे। बाबा नजमी भी हुआ करते थे। लेकिन मैं एक चीज अर्ज कर दूं कि वो एक कोल्ड वॉर का दौर था, और कोल्ड वॉर में जो शायरी या अदब तख्लीक हुआ उसकी अपनी जाते हैं जिस पर मैं गुफ्तगू नहीं करूंगा। लेकिन आरिफ साहब के बारे में जिस चीज से मैं बहुत मुतासिर हूँ वो ये है कि आरिफ नकीब एक कमिटेड शायर है। जो कमिटमेंट मैंने इनमें देखा शायरी और अदब के साथ, वो बहुत कम लोगों में दिखाई देता है। और वो मुसलसल कई दहाइयों से लिख रहे हैं, अच्छा लिखते हैं, और मुझे ये कहने में कोई बात नहीं कि वो मसीही शौरा में सफ़े अव्वल के शायर हैं, और उनको खबरों में रहने का फन भी आता है कि किस तरह अपने कलाम को, अपने काम को लोगों के दरमियान वो किया जाए, मुतारफ किया जाए, और अपने आप को वो लोगों के दरमियान राब्ते में रखा जाए। अब जहाँ तक हरफ लामकां का ताल्लुक है, तो मैं अर्ज कर दूं कि जब पहला मुसद्दा मेरे पास आया और आरिफ ने कहा कि आप इस पे कुछ लिखें, तो मैं पढ़ रहा था उसको, अपने पॉइंट्स भी लिख रहा था उस पर पेंसिल से, और उसके बाद जो मेरी समझ में आया मैंने उस पर लिखा। लेकिन आज मैं जब इस प्रोग्राम में शिरकत करने वाला था तो मेरे ज़हन में एक बात आई कि हरफ़े लामकान जो है वो नकीब के शेरी तजुर्बे और इर्तिका का नक्श अव्वल है। अगर आप उसकी गज़लों को पढ़ते हुए जाएं और नज़मों की तरफ जाएं तो आपको एक इर्तिका नज़र आएगा, और मेरे सामने वो इर्तिका बहुत वाज़ेह है क्योंकि मैंने उनको बहुत अरसे देखा, शायद 1980 और 90 की दहाई में। जैसा मैंने अर्ज किया वो एक कोल्ड वॉर का दौर था, और अहद ब अहद जो तब्दीलियां आती रही हमारे मुल्क में, उसके दौर में देखता हूँ तो ये कई दहाइयों पर जो एक अहद है, आपको हरफ लामकाम में इस अहद की कुछ झलकियां मिलती हैं। और वो झलकियां कैसे मिलती हैं कि मतलब जिन इसातिज़ा से आरिफ ने कस्बे फ़न किया या जिन रवायतों में उनकी परवरिश हुई, उसकी झलक आपको इस तरह मिलेगी कि वो रवायतें और कस्बे फ़न जो है वो उस अहद की समाजी और सियासी हकीकतों में बंधा हुआ है, लेकिन कारी को वो तलाश करना पड़ता है। क्योंकि अगर शायर के समाजी शौर को ना समझा जाए तो शायरी जो है वो जमालियात से आगे नहीं जा सकती। जमालियात वो एक अहम हिस्सा है शायरी का, लेकिन अगर आप शायर के समाजी शौर को नहीं समझ पाते तो आप उसके अहद की हकीकतों को समझ नहीं पाते हैं। और यही वजह है कि नकीब ने चूंकि अपने आप को मुआशरे के मजमूई समाजी अमल का हिस्सा रखा और वो इन्वॉल्व रहे इस तमाम समाजी हकीकतों में, बल्कि आज भी हैं, तो गोया आरिफ का जो समाजी शऊर था उसकी परवरिश हुई उन हकाइक के दरमियान जो हमारे इर्द गिर्द हैं। जुल्फ़कार अली भुट्टो का ज़माना देख लें, उसके बाद ज़िया आए, मुशर्रफ आए, जो भी हमारे सियासी अदवार हैं और जो मुआशी हकीकतें हैं और अवाम के जो हालात हैं, उसमें आरिफ नकीब का समाजी शऊर जो है वो पनपता रहा और किसी न किसी शक्ल में उसकी झलक हमें इसमें मिलती है। आरिफ की जो इन्वॉल्वमेंट है, समाजी इन्वॉल्वमेंट, यही वजह है कि आप को ये बात समझने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि आरिफ नकीब हमारे मुल्क के अदब का जो कौमी धारा है उसमें शामिल होने के ना सिर्फ लायक हैं बल्कि वो शामिल हैं हमारे कौमी अदबी धारे में। तो किसी वो गैटों में बंद नहीं है, बल्कि अदब का जो मजमूई कौमी धारा है उसका वो हिस्सा रहे हैं और हैं। और ये चीज़ उन्हें
मुमताज करती है कई मानों में हमारे दूसरे शौरा से, कि किस तरह वो अपने आप को कौमी धारे के साथ रखते हैं। और मेरे ख्याल में यही वजह है कि जब मैं हरफ़े लामकां को पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि इसमें, इस मजमूए कलाम में आरिफ की मुंतखब गज़लें और नज़में हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। सॉरी, मुंतखब गज़लें और नज़में हैं, बहुत सारा कलाम है जो इन्होंने उसमें शामिल नहीं किया, जहाँ तक मेरा ख्याल है। और इसकी वजह यह है कि आरिफ एक ज़ूद गो शायर हैं। वो बड़ी तेज़ी से लिखते हैं, बड़ी तेज़ी से सोचते हैं, और ज़ूद गोई में इसकी एक वजह यह है कि उन्हें फ़न शायरी पर गिरफ्त है। ज़ूद गोई की एक और वजह यह है कि उनकी तबीयत ज़ोरों पर रहती है, वो लिखते हैं, लेकिन ये भी है कि उन्होंने अपना बहुत सारा कलाम जो है वो शायद इस मजमूआ कलाम में शामिल नहीं किया। लेकिन इस मजमूआ कलाम में बहुत सारी जो चीज़ें हमारे सामने हैं, उसमें एक अहम बात जो मुझे लगी जब मैं पढ़ रहा था कि वो आरिफ की शायरी में हमें रवायत के साथ एक रिश्ता जो है जुड़ा हुआ लगता है, लेकिन ख़ास तौर पर उनकी नज़मों में जदीद शायरी के तेवर हमें नज़र आते हैं। अब ज़रा जदीद शायरी की तरफ आएँ, जो हमारी नौजवान नस्ल गज़ल और नज़म में पेश कर रही है, और ये बड़ा हैरानकुन तजुर्बा है। और मैं अक्सर सोचता हूँ कि देखें, जदीद शायरी एक मखसूस तर्ज़ एहसास की पैदावार है, जिसने हमारी नौजवान नस्ल को एक अनोखा तर्ज़ एहसास दिया है, और इसका डिक्शन, इसके अल्फाज, इसकी तशबीहात एकदम नई है। और हम चूंकि एक टेक्नो एज में रह रहे हैं और हमारे समाजी जो मेयार हैं वो बदल गए हैं और दुनिया तेजी से बदल रही है, तो नौजवान नस्ल ने इन मेयारों के साथ चलने की पूरी कोशिश की है, और जदीद शायरी के तेवर में हमें ये चीज़ नज़र आती है। और आरिफ की नज़मों में ख़ास तौर पर ये जो चीज़ है कि जदीदियत जो है उसके तेवर उसमें नज़र आते हैं। और मुझे लगता है कि आरिफ की नज़मों में जो जदीद शायरी के तेवर आते हैं, उसकी वजह यह है कि आरिफ की ज़हनी फ़िज़ा जो है उसको बनाने में या उसकी परवरिश करने में मुख्तलिफ अदवार के शब रोज़ ने एक अहम किरदार अदा किया है। जब मैं मुख्तलिफ अदवार की बात करता हूँ तो मेरा मतलब ये होता है कि हमारे इर्द गिर्द जो वाक़यात होते हैं, आपने कभी आरिफ की गज़लों में और नज़मों में बगावत का वो जज्बा नहीं देखा जो अहले मज़हब के साथ है उन्हें, या हर वो नाइंसाफ़ी या गलत चीज़ें जो हो रही हैं हमारे इर्द गिर्द, जब वो इसके बारे में लिखते हैं तो वो किस तरह रिबेलियस होते हैं, किस तरह वो अपना रद्द अमल ज़ाहिर करते हैं। तो उनकी ज़हनी फ़िज़ा में जिन अवामिल ने किरदार अदा किया है, उनकी शायरी को समझने के लिए हमें उनको समझने की ज़रूरत है कि वो कौन से समाजी अवामिल हैं, हक़ाइक़ हैं, जिन्होंने आरिफ की ज़हनी फ़िज़ा को तैयार करने में एक अहम किरदार अदा किया। और उनकी ज़हनी फ़िज़ा को समझने के लिए हमें हरफ़े लामकां का मुताला करना पड़ेगा। आरिफ की, अब मैं फ़नी तौर पर आगे अपनी बात को बढ़ाऊँगा। आरिफ को मैं नई रदीफ़ों का, नित नई रदीफ़ों का शायर कहता हूँ, और मुझे समझ नहीं आती कि इस बारे में वो किस तरह अपनी तबीयत पे ज़ोर देते हैं। उन्हें ये फ़न आता है कि किस तरह अपनी तबीयत पे ज़ोर दिया जाता है, और ये एक किस्म की ज़हनी मुशक्क़त है कि वो ऐसी रदीफ़ें और काफ़िये तलाश करते हैं, और फिर उन काफ़ियों और रदीफ़ों के ऊपर वो ख़यालात की एक दुनिया आबाद करते हैं, और इसको मैं कहता हूँ लिसानी तश्कीलात। एक म्यारी अदब जो है, उसकी जो एक अहम चीज़ है वो है लिसानी तश्कीलात, कि शायर लिसानी तश्कीलात में कहाँ तक आगे जाता है। और मैं इस पूरी कोशिश को, आरिफ की को लिसानी तश्कीलात के ज़ैल में रहता हूँ, और मेरी राय ये है कि
जब हम वो नित नई तरकीबें, तलाज़में, रदीफ़ें और काफ़िये इस्तेमाल करते हैं, तो वो असल में लिसानी तश्कीलात कर रहे होते हैं, जो मेयारी अदब का अहम जुज़ है। और आखिर में एक बात माज़रत के साथ, कि आरिफ़ ने अपने पहले मजमूआ कलाम का नाम हर्फ़ लामकान रखा है। यूँ लगता है कि आरिफ़ के तहतुल शऊर में एक आफ़ाकी शायरी का तसव्वुर है। हर्फ़ लामकान कि उनके तहतुल शऊर में ये जो आफ़ाकी शायरी या फ़ाक़गीर शायरी है, तो इसको देखते हुए मेरी ये तमन्ना है और दुआ है कि उनका अगला मजमूआ कलाम हमें मज़ीद फ़िक्र अंगेज़ शायरी देगा। शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया। जनाब, आपने जिस महाराना अंदाज से इनकी शख्सियत और कलाम का अहाता किया है, काबिले तहसीन भी है, और इनकी शायरी में ये सब रंग जो हैं वो पाए जाते हैं, और एक तख्लीक़कार अपनी बेहतरीन तख्लीक से किसी एक नस्ल या लासानियत तक महदूद नहीं रहता, बल्कि वो सारे आलम की एक विरासत बन जाता है। तो हम अभी चलते हैं हाजरा नूर साहबा की तरफ, कि वो इनकी शायरी को, आरिफ परवेज नकीब साहब की शायरी को किस अंदाज से देखती हैं, किस सूरत में, क्योंकि वो भी एक बड़ी अच्छी खूबसूरत लहजे की और बड़े अच्छी उनकी काफ़ियतें हैं, शायरा हैं। तो हम सुनते हैं कि वो क्या कहती हैं हर्फ़े लामकां और इनकी शायरी पर। जी। आरिफ साहब से मेरा ताल्लुक अभी तो यानी फेसबुक से ही हुआ। अब काफी फासला है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, लेकिन जी। उनकी शायरी को मैंने फेसबुक के जरिए ही मुतारिफ हुई हूँ। पाकिस्तान में ऐसे कई शायर हैं और कई शायरात भी है कि जहाँ कमी नहीं है। मुझे ऐसे लगता है बहुत ज़रख़ैज़ ज़मीन है पाकिस्तान की, शेरी और अदबी सतह को लेकर, मामलात को भी लेकर। तो यहाँ पर जो आरिफ साहब ने कहा कि बाहैसियत शायर उनको तस्लीम किया जाना मुश्किल अमर रहा, तो ये बात हो भी सकती है, क्योंकि मकामी लोग इस बात को जल्द मानने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन उनकी फ़नी सलाहियतें और उनकी जो फ़नी काबिलियत है, तो उनकी शायरी में नुमायाँ नज़र आती है। तो हमने बगौर उसका मुशाहिदा किया। अदबी और तारीख कहना चाहिए कि बाहैसियत शायर या शायरा होना, तो ये तो दर किसी का क्या मकाम है और उसका फैसला तो अदबी तारीख ही करती है। शायरों में जहाँ तक देखा जाए तो कुदरती तौर पे कुछ असरात हमारे अंदर पाए जाते हैं कि हम शायरी को अपने तौर पे पेश करते हैं, और ये तो मुझे लगता है कि ये एक खुदादाद सलाहियत है शायरी, और उनमें ये बहुत अच्छी तरह से मौजूद है। मैंने जहाँ तक के मुशाहिदा किया है और उनके जो कलाम पढ़ी हूँ, तो उनकी सलाहियतें अल्लाह ताला ने उनको बेपनाह सलाहियतों से, तख्लीकी सलाहियतों से नवाजा है। बल्कि उनकी सलाहियतों में शायराना इज़हार का तरीका उनको बहुत अच्छा अंदाज से बख्शा है। उनकी गज़ल और नज़्म में यकसा तौर पर उन्हें कुदरत हासिल है। गज़लों का मजमूआ उनका अभी आया है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि बहुत अच्छा होगा माशाअल्लाह। मैंने तो अक्सर फ़ेसबुक पर ही उनके सारे कलाम पढ़ी हूँ, और अदबी हलकों में भी उनकी पज़ीराई होती रहती है, और ये भी देखा है बारहा। तो आरिफ साहब ने अपनी ज़िंदगी के जो मसाइल हैं या फिर नए-नए मौज़ूआत हैं जो कि होते रहते हैं, ज़माने में जो चलता रहता है, तो वही सब कलमबंद किया है। नए मसाइल और मफ़ाहिम को अहाता उन्होंने करने की बहुत कोशिश की है, और उसी सतह पर उन्होंने हैयत और ज़बान के मामले में बहुत ज़्यादा तोड़-फोड़ के कायल वो है भी नहीं। तो वो अपने तख्लीकी सफ़र में क्लासिकी रिवायत की पासदारी करते हुए अक्सर नज़र आए मुझे। और जदीद शेरी रिवायात से बाखूबी आशना है, और इसके साथ-साथ कदीम रिवायत से भी हमकनार है। उनके कलाम के मुताले से अंदाज़ा होता है कि उन्होंने अपने हम असर शायरों के कलाम के साथ-साथ
اردو کی کلاسیکی شاعری کا بھی گہرا مطالعہ کیا ہوا ہے، تو لیکن اپنی افکار طبع کے مطابق اظہار کی سطح پر ان کا جھکاؤ کلاسیکی شعری روایات کی طرف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی جو لفظیات اور اردو شاعری کی کلاسیکی روایت سے زیادہ قریب ہے۔ ان کی فکر، سوچ اور معنویاتی نظام معاشی جو ہے تو شاعروں سے مختار نہیں ہے کسی شاعر سے، ان کا اپنا ایک مقام ہے، بلکہ ان کا خود کا اپنا تعمیر کیا ہوا ان کا اپنا مقام ہے، اور ان کی تخلیقی توانائی میں انفرادیت ہے، ان کا سرمایہ فکر و احساس تمام تر اپنا ہے، اور ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ تو جہاں تک کہ میں نے کلام پڑھا ہے تو ذاتی طور پر میں ان سے واقف بھی ہوں، بہت مرتبہ میں خود مشاورت بھی کرتی ہوں، کبھی کبھی ان سے، ان کے کلام سے اندازہ میں لگا لیتی ہوں کہ جو ان کا کلام ہے کس نہج کو اور کس سطح کا کلام وہ اپنا ہمیشہ پیش کرتے ہیں۔ نئی نئی ردیف ان کے کلام میں پائی جاتی ہے، اور بہت حساس ذہن کے مالک ہے۔ مجھے جہاں تک کہ ان سے بات چیت کر کے اور ان کے شاعری سے بھی اندازہ ہوا کہ وہ بہت حساس ہے، طبیعتاً بہت حساس ہے وہ، کیونکہ بہت سارے موضوعات پہ ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں کبھی فون پر، تو انڈیا میں ہونے والے واقعات یا پھر جو پاکستان میں اکثر کچھ کچھ حالات سے بگڑ جاتے ہیں، یہ واقعات ہوتے ہیں، ہم لوگ اس پر جب بات چیت کرتے ہیں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بہت حساس طبیعت کے ایک انسان بھی ہے۔ باشعور شاعرانہ امتیاز بھی ان میں خوبی یہ پائی جاتی ہے۔ اس اعتبار سے وہ اپنے کلام میں جو ان سے ہم ہمکنار ہوتے ہوئے بھی وہ اس عہد کے جدید تصورات کو اپنے کلام میں پیرو کر سب کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اچھا، میں یہ چاہوں گا نور صاحبہ طرح کہ سے اگر آپ کو کوئی ان کا شعر قطع کوئی جی ایسا ان جو کی کلک غزل ہے، یاد ہو۔ مجھے ان کی غزل بڑی وہ پسند آتی ہے ہمیشہ، کہ وہ ہم مبتلائے سچ تھے تو تابع صلیب تھے، ہم لوگ مبتلا سچ تھے تو تابع صلیب تھے، دستار کے فدائی بھی کیا بد نصیب تھے۔ اور اس کا ایک اور شعر ہے کہ اچھا ہوا کہ آپ نے اس کا نہ رخ کیا، اچھا ہوا کہ آپ نے اس کا نہ رخ کیا، اس شہر جہاں پہ درد کے سائے محیط تھے۔ بہت پیاری غزل ہے، اور اتنی بہت ہی فنکارانہ انداز سے انہوں نے اپنے قافیوں کو بہت اچھے سے نبھایا ہے وہاں پر، کہ حیران نہیں کہ میں تھا پریشاں بدل جہاں، حیران نہیں کہ میں تھا پریشاں بدل جہاں، نہ واقف حروف بھی اب کے خطیب تھے۔ اور دیکھیے کتنی مہارت کے ساتھ انہوں نے یہ اپنا شعر پیش کیا ہے کہ میں چھین بھی تو سکتا تھا ایسا نہیں کیا، میں چھین بھی تو سکتا تھا ایسا نہیں کیا، یہ جانتے ہیں آپ تو میرا نصیب تھے، یہ جانتے ہیں کہ آپ تو میرا نصیب تھے، کیا شے تھی جانے ان کے تبسم کی روشنی، کیا شے تھی جانے ان کے تبسم کی روشنی، کچھ لوگ اضطراب کے کتنا قریب تھے۔ بہت بہت یعنی ایک ایک قافیے پہ بالکل خیال کو پیوست کر دینا، یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا فن ہے، اور بہت اچھی طرح بخوبی انہوں نے اس کو نبھایا بھی ہے۔ وہ اس کے خال و خط کی وضاحت سے ماورا، وہ اس کے خال و خط کی وضاحت سے ماورا، ہم بھی عجیب تھے۔ اور مداح ہے ان کی غزل کا کہ ہم پر نہ تیرے شہر کا باب وفا کھلا، ہم پر نہ تیرے شہر کا باب وفا کھلا، حالانکہ محبتوں کے تو ہم بھی نقیب تھے۔ بہت اچھا، اور بہت اچھی ان کی شاعری ہے اپنے آپ میں۔ نظمیں بھی مجھے ان کی نظمیں بھی بہت پسند آتی ہے، خاص طور پر کبھی ایسے بگڑتے ہوئے حالات کو وہ جب قلم بند کرتے ہیں اپنی نظموں میں، تو بہت یعنی وہ تاثر اور متاثر کرتی ہے ان کی نظمیں۔ بہت اچھی شاعری ماشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ نقیب صاحب، جہاں تک ایک جدت پسند ہے، پھر حقیقت پسند ہے، مجھے بھی ان کے پڑھنے کا بڑا اتفاق ہوا، بلکہ روز ہی پڑھتے ہیں ان کے، تو مجھے ایک میں یہاں سناتا جاؤں کچھ شعر ان کے۔ جو روٹھ جائے منانے کی
जिद नहीं करते, जो रूठ जाए मनाने की जिद नहीं करते, कि खुद को यूं भी गंवाने की जिद नहीं करते, और मिटा सको तो मिटा दो किसी तरह दिल से, खतों को ऐसे जलाने की जिद नहीं करते। तो बड़े खूबसूरत जो लहजे और बड़े अंदाज इनको हम कहते हैं कि ये सब रंग पाए जाते हैं जहाँ रोमानी शायरी पाई जाती है, और इसमें इनकी मज़ाहमती शायरी जो इनमें है, बहुत कम लोग इस तरह की मज़ाहमती शायरी करते हैं। तो मैं इनसे पूछूंगा, आरिफ साहब, हमेशा सच बोलने वाला जो जिसने सच अपनाया था, सलीब उसका मुकद्दर थी जिसने सच अपनाया था, इस तरह के हालात होते हैं। तो आप मज़ाहमती शायरी हकीकत के करीब तरीन रहते हैं, आप निडर शायर भी समझे जाते हैं, बेबाक जो कहते हैं वो तबसरा करते हैं, तो आपको मसाइल भी गालबन बड़े पेश आते होंगे। तो इस तरह कुछ आप क्या कहना चाहेंगे, और क्या मज़ाहमती शायरी की ज़रूरत है हमें, ये भी ज़रूर बताइएगा कि इसका क्या किरदार क्या है अदब में। बहुत शुक्रिया। तो आपने ये सवाल जो किया मज़ाहमती अदब के बारे में, एक शेर याद आ गया कि शहर में सच बोलता फिरता हूँ मैं, शहर में सच बोलता फिरता हूँ मैं, लोग खाइफ है मेरे अंजाम से। मैंने जिस सियासी और समाजी अदवार में जिंदगी गुजारी है, जिस माहौल में मैंने अपनी जिंदगी को पनपते हुए देखा है, उस माहौल ने मुझे मुतासिर किया, और जो मुझे रोमानवियत से मज़ाहमत, और मज़ाहमत से रोमानवियत, और रोमानवियत से फिर कहीं मज़ाहमत की, कहीं ना कहीं ये कुछ होता है। और मज़ाहमती शायरी हमारे मुआशरे के लिए जरूरी क्यों है, ये एक बड़ा अहम सवाल है। जब हम किसी भी तनाजुर में अपने आप को देखते हैं, अपने आसपास के माहौल को देखते हैं, समाजी रवैयों को देखते हैं, इस्तेसाल की कैफियत जो हम पर गुजरती हैं, हम पर जो रोज़-ओ-शब गुजरते हैं, भूख व अफलास के जो साए हम पर मंडराते रहते हैं, वो हमें मुतासर करते हैं। और बहुत से शोरा हैं जिन्होंने मज़ाहमती शायरी की, जिनमें फैज़ अहमद फैज़ भी हैं, अहमद फराज भी हैं, हबीब चालक भी हैं। लेकिन हम अगर मसीही अदब की बात करें या मसीहियों की खुशबू बात करें, अदब का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन मसीही शोरा और शायरात की अगर बात करें, तो हमारे यहाँ मज़ाहमती शायरी करने वाले नापैद हैं। कोई एक आध हो तो पता नहीं, उसकी वजह हमारे अंदर का वो डर है जो हमें मज़ाहमती शायरी करने से बाज रखता है। पता नहीं हम अपने अंदर उस डर को क्यों रखे हैं। हम जब जलसों जुलूसों में होते हैं तो बड़ी लंबी लंबी तकरीरें करते हैं, लेकिन जब मज़ाहमत की बात आएगी तो हमें साफ सुन जाता है। ये मुझे नहीं पता कि हमारे शायरा और शायरात जो हैं वो मज़ाहमती अदब से या तो नाला हैं, या डरपोक हैं, या खौफज़दा हैं, या उनमें कोई डर का शायबा पाया जाता है, या वो खतरा महसूस करते हैं। लेकिन मैं उन खतरात से, खौफ से और डर से बालातर वो जी, बहुत शुक्रिया। तो हम अभी देखते हैं और सुनते भी हैं कि मशहूर शायरा आयरिन फरद क्या कहती हैं जनाब आरफ परवेज नकीब साहब के बारे में, उनकी शख्सियत और उनके कलाम के बारे में वो क्या कहती हैं। जी, हल्फी लामका के शायर जनाब आरिफ परवेज नकीब साहब, जो कि जर्नलिस्ट भी हैं, दानिश्वर भी हैं, मुहक्किक भी हैं और अदीब भी हैं। उनकी शायरी में फिक्री कैफियत का बड़ा अमल दखल है। वो कहते हैं, हैरत है बड़ी देर से अनजान खड़ा है, जो बन के मेरे शेर की पहचान खड़ा है। वो लम्हा हमें जिसने मिलाया था किसी रोज, बिछड़े हैं तो वो लम्हा पशेमान खड़ा है। तालीमी इदारे हों या अदबी हल्के, शायर और शायरी को बड़ी पसीराई मिली है। उनका ये शेर देखिए, गुमा में कैद हूँ गरचे यकीन नहीं भूला, गुमा में कैद हूँ गरचे यकीन नहीं भूला, खला में गुम तो हुआ हूँ जमी नहीं भूला। वो दुनिया के जुल्म सितम देखते हुए उन पर गहरी नजर भी रखते हैं और उन्हें बयान करने का तरीका भी जानते हैं, और अपने शेर में कहते हैं, हम के हर बार नए जुल्म के आदी होकर इतने बुज़दिल हैं
कि दीवार से लग जाते हैं। आरिफ परवेज नकीब साहब उर्दू और पंजाबी के बेहतरीन शायर हैं। अपनी कौम का दुख महसूस करते हैं और पंजाबी में कुछ इस तरह से उसे बयान करते हैं। सौखी पैंदी है कि पारी वेख लइए, एक वारी ते मार उडारी वेख लइए, इंसानां नूं छड़ के मजहबां दीना दी किन्ना किन्ना कंध सारी वेख लइए। एक हसास शायर हैं और अपनी दिली कैफियत को, जो दूसरों की भी दिली कैफियत समझी जाती हैं, कुछ ऐसे एहसास दिलाते हैं कि मेरे अंदर के मीठे पानियों को तेरे लहजे ने कड़वा कर दिया है। एक शायर ही दुनिया के दुखों को, दुनिया के हालात व वाक़यात को अपने कलम के जरिए बयान करता है और आरिफ परवेज नकीब साहब ने भी ऐसा ही किया है। आज दुनिया गम, नफरत, तासुब, गुस्से, लड़ाई झगड़े और तफरकों से भरी हुई है। उनका ये शेर देखिए, वो कहते हैं कि हमको ले आए हैं मैदान में जंग करने को, हमको ले आए हैं मैदान में जंग करने को, पाँव में बेड़ियां और पुश्त पे बाजू बांधे। सिर्फ एक शायर यही महसूस नहीं करता कि जंग या तासुब या नफरत इसी से मुतालिक लिखा जाए, बल्कि उसके अंदर उम्मीद की किरणें भी होती हैं जो वो दूसरों तक पहुंचाता है। वो कहते हैं, ये साले नौ है हवाओं का रुख भी बदलेगा, ये साले नौ है हवाओं का रुख भी बदलेगा, ये शहर गम है खुदाओं का रुख भी बदलेगा, गरीब शहर परेशान है बेअसर क्यों है, कभी तो इनकी दुआओं का रुख भी बदलेगा। और हमारी दुआ आरिफ परवेज नकीब साहब के लिए यही है कि वो यूं ही सरगर्म अमल रहें, उनकी एक अलग पहचान बनी रहे और इसी तरह से मुबारकबादें समेटते रहें। शुक्रिया। ये थी आयरन फरज साहबा जो अपने खूबसूरत अंदाज से जनाब आरिफ नकीब साहब के बारे में बता रहे थे। तो मैं चाहूँगा कि दूसरे हमारे मेहमान डॉक्टर अली इमरान साहब हैं, हम उनसे पूछते हैं कि वो जो इनकी शायरी है, बुक है हरफे लामकान है, उनके बारे में उनके क्या ख्यालात हैं। जी डॉक्टर अली इमरान साहब। मेरा नाम अली इमरान है। मैंने एफसी कॉलेज यूनिवर्सिटी से पाकिस्तानी अक़लियतों का उर्दू अदब में हिस्सा इस उन्वान के तहत एमफिल की सतह का मकाला लिखा है। मैंने अपने मकाले में पाकिस्तान की जो गैर मुस्लिम अदीब और शुअरा हैं उनकी अदबी काविशों को तहकीक की और तनकीदी नुक्ता निगाह के तौर पर दुनिया के सामने लाने की कोशिश की। इन दिनों मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर से PhD कर रहा हूँ। अपने मकाले के दौरान बहुत सारे अदीबों और शायरों को पढ़ने का मौका मिला। उनमें एक मेरे शायर, जिसको मैं ये कहूँगा कि मेरे पसंदीदा शायर आरिफ परवेज नकीब, उनका एक मजमूआ हरफे लामकान जो है कारीन से दाद समेट चुका है। जब हम बात करते हैं आरिफ परवेज नकीब की शायरी की, तो उनकी शायरी एक ऐसे खित्ते की शायरी है कि जिस खित्ते के लोग जुल्म, जबर, बर्बरियत, इंतशार, बदअमनी और एक घुटन के माहौल के वासी है। आरिफ परवेज अपनी शायरी में एक ऐसे अहद के नुमाइंदा बन के सामने आते हैं, बल्कि अगर हम उनके कलाम का बगौर मुताला करें तो यूँ लगता है कि जो मुशाहिदात और तजरीबात से पैटर्न में ढालते हैं वो ना सिर्फ एक अहद की आवाज़ है, बल्कि यूँ लगता है कि आरिफ परवेज नकीब के अपने ऊपर गुजरती हुई वो कैफियत हैं जिनको दुनिया के सामने लाने की कोशिश करते हैं। आरिफ परवेज नकीब गज़ल के, नज़्म के और कथा निगारी के इतने खूबसूरत नमूने क़ारीन के सामने रख देते हैं कि कारी देर तक उनका मुताला करते हुए हाथ उठाता रहता है। मैं उनकी एक गज़ल जो
ان کی کتاب کا عنوان بھی ہے حرف لامکان کا. اس کے 2-3 اشعار آپ کے سامنے اپنی ان باتوں کی دلیل کے طور پر پیش کروں گا. نقیب صاحب کہتے ہیں کہ مکان تو ایک طرف حرف لامکان بھی نہیں، مکان تو ایک طرف حرف لامکان بھی نہیں، زمین پاؤں تلے سر پہ آسمان بھی نہیں. عجیب طرز جدائی عجیب درد فراق، عجیب طرز جدائی عجیب درد فراق، بچھڑ رہا ہے وہ مجھ سے کہ بدگماں بھی نہیں، بچھڑ رہا ہے وہ مجھ سے کہ بدگماں بھی نہیں. سمندروں کی تمنا نے دے دیا صحرا، سمندروں کی تمنا نے دے دیا صحرا، کہ سر پہ کھولتا سورج ہے سائباں بھی نہیں. دیکھیں عارف پرویز نقیب کی جو شاعری ہے وہ مضامین کے اعتبار سے، اپنی فکر کے اعتبار سے وہ وہی باتیں ہیں جو آج تقریباً ہر دوسرا شاعر کا ہے. لیکن کمال فن یہ ہے کہ جب نقیب انہی باتوں کو، انہی فکر کے جو چیزیں ہیں دنیا کے سامنے جب لاتے ہیں تو اپنے خاص اسلوب پر، اپنے خاص ڈکشن کے تحت لے کر آتے ہیں. تو وہی خیالات، وہی باتیں، وہی موضوعات ہمیں بالکل نئے دکھائی دیتے ہیں. بلکہ یوں لگتا ہے کہ جیسے عارف پرویز نقیب اپنی بات نہیں بلکہ ہمارے دل کی بات کہہ رہے ہیں. ان کی نظم میں جو ہمیں محبت اور الفت دکھائی دیتی ہے، ان کے قطع میں جو دنیا اور اس کے حالات دکھائی دیتے ہیں، وہ سب کے سب اتنے دلکش، جاندار اور خوبصورت پیرائش سے آراستہ ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ ہم نہ صرف ان کا کلام پڑھتے جائیں بلکہ خوش اور ہنس اٹھاتے جائیں اور دل سے ہم ان کے لیے واہ واہ کرتے ہیں. میرے دعا ہے کہ عارف پرویز نقیب کا خوبصورت قلم حرف لامکان سے وہ تمام حروف شعری پیکر میں ڈھالتا ہوا ہمارے سامنے لاتا رہے اور ان کا شعری سلسلہ قائم اور قائم رہے اور ان کے خوبصورت نمونے ہمیں سدا دیکھنے کو ملتے رہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ علی عمران صاحب جو لاہور سے عارف پرویز نقیب صاحب کی شخصیت اور ان کی کاوشوں کے بارے میں تبصرہ کر رہے تھے. تو میں جاتے جاتے عارف پرویز نقیب صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ آپ کی جو ایک بولڈنس ہے، کیا اس نے آپ کو پرابلم میں کبھی ڈالا؟ اور اس کے بعد یہ بھی کہوں گا کہ آپ کو پذیرائی کمیونٹی کی طرف سے کیا پذیرائی کیا رہی کہ کس طرح کی پذیرائی ملی؟ جی جناب عارف پرویز نقیب صاحب. بہت شکریہ جاوید صاحب. جہاں تک میرے آگے بڑھ کر بولنے کا مقصد جسے آپ دلیری کہتے ہیں یا بولڈ کہتے ہیں یا ڈر اور خوف سے بالاتر ہو کر لکھنا کہتے ہیں، یہ اصل میں میرے مزاج کا حصہ سماجی رویوں، سیاسی رویوں اور اس کے علاوہ جو ہمارے ہاں فرقہ وارانہ پائے جاتے ہیں رویے، ان کی وجہ سے بھی تھا. دینی اور مذہبی رویے بھی تھے. میں نے نہ صرف معاشرتی یا سماجی رویوں پر مزاحمتی شاعری کی بلکہ کلیسیائی رویوں پر بھی مزاحمتی شاعری کو بنایا. اور اس ضمن میں مجھے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور حتیٰ کہ اپنی اوائل عمری جسے ہم جوانی کا دور کہتے ہیں، اس دور میں، بلکہ کم سنی کا یا 19 ایج میں کہتے ہیں، میں نے اس دور میں بھی قید و بند کی صحبتیں جھیلی. اور میرے ساتھ جو لوگ جن کے ساتھ مجھے قید رہنے کا شرف، اسیری کا شرف حاصل ہوا، فیض احمد فیض، احمد الدین قاسمی اور صفتی حسن جیسے لوگ، تو وہ اس وقت جید شخصیات تھے اور میں ان کے سامنے بچہ تھا، لیکن میں ان کے کام کرتا رہتا تھا. کبھی چائے بنا دو، کبھی کچھ کر دو. تو وہاں سے مجھے ایک رجحان ملا کہ ہم معاشرے کے اندر جو ہمارے کمیاں پائی جاتی ہیں، جو استحصال پایا جاتا ہے، جو ہم نے طبقاتی تقسیم بنا رکھی ہے، ان پر کس طرح سے لکھا جاتا ہے، ان کو کس طرح سے پڑھتا جاتا ہے الفاظ کے. اور پھر جب ان لوگوں کو پڑھنے کا موقع ملا، جن میں فیض احمد فیض، احمد افراد، حبیب جالب جیسے لوگ، سعد لدھیانوی جیسے لوگ جب پڑھنے کو ملے، تو پھر مجھے مزاحمتی شاعری کی جانب جانا پڑا. اور اس مزاحمتی شاعری میں مجھے مزاحمت کا جو سامنا کرنا پڑا وہ بیرون سے مجھے کم اور اندرون سے زیادہ، جس میں
हमारे कलीसिया रवैये जो हैं उन्होंने मेरी शख्सियत को जो है वो उस पर कथन लगाने की बारहा और बेहद कोशिश की। मैं सीधा कह देता हूँ कि पादरी साहब थे, उनको ये बड़ा बुरा लगता था, उनके लिए बड़ा कलक था कि मैं कलीसिया के, वो कहते हैं खुदावंद के खादमीन के खिलाफ लिखता है। भाई मैं खुदा के खादमीन के खिलाफ नहीं लिखता, मैं उन रवैयों के खिलाफ लिखता हूँ जो खादमीन अपनाए हुए हैं। सो एनीहो, तो मुझे ये सारी बातें जो है उनका सामना करना पड़ा और मुझे उनके साथ बकायदा एक जंग जो है वो मुझे करना पड़ी, और उसमें कोई फतह या शिकस्त का कोई ये मौजूद नहीं है। तो और भी ज्यादा, बहुत ज्यादा उनको खुदा बरकत दे, लेकिन हम अपने रवैयों को जो समाजी और कलीसियाई या मजहबी या दीनी या फिरका वाराना जो रवैये जिनका हम सामना करते हैं, अगर हम उनको अपनी निगाह में नहीं रखते तो हम बहैसियत शायर अपने आप को ना तो मनवा सकते हैं और ना कह सकते। सिर्फ रोमानवी शायरी, सिर्फ रोमानवी शायरी, महज रोमानवी शायरी आपको शायर तो कहलवा सकती है, लेकिन आपको बहैसियत इंसान साबित नहीं कर सकती। जी जी, एक और मैं छोटी सी जाते जाते बात ये पूछना चाहूंगा कि ये अगर मैं तो महसूस करता हूँ, पता नहीं आप महसूस करते हैं कि नहीं, कि हम मुख्तलिफ उसमें बटे हुए हैं, ग्रोह में या ग्रोह बंदियां हैं, जैसे चाहे शायर है, अदीब है, चाहे सियासतदान है, चाहे मजहबी है, छोटे छोटे ग्रुपों में आप बटे हुए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, और जाते जाते फिर आप नए शायरों के लिए क्या पैगाम देंगे? जी बहुत शुक्रिया दूसरे सवाल का भी। असल में हमारे यहाँ मुझे आज तक समझ नहीं आई कि हसद किसे कहते हैं। मुझे हसद के मायने ही समझ में नहीं आए, क्योंकि मैं जो लिखता हूँ मुझे अपना पता है कि मैं क्या लिखता हूँ। अगर कोई और शायर है, अगर वो मुझसे अच्छा लिख रहा है, उसका तखय्युल और फिक्र, उसका तराकीब, उसकी इस्तिलाहात, उसका मुताला, उसका मुशाहदा मुझसे ज्यादा मजबूत है, तो इसमें उसका क्या कसूर है? ये नहीं कि कमी मुझ में है, लेकिन मैं हासद बनकर खाम का तनकीद करूं, ये मुझे जेब नहीं देती। इसलिए हमें, ये हमारे अंदर जो ग्रोह बने हुए हैं वो इन्हीं असबाब से बने हैं कि खाम खा कोई अपने आप को बड़ा कह रहा है, शायर कोई छोटा कह रहा है। शायर कोई बड़ा छोटा नहीं होता, लेकिन हमें इन रवैयों से गुरेज करना चाहिए। आप जो अच्छा नहीं लिख रहा, अगर आप उनकी तरबियत की जानिब कदम बढ़ाते हैं, उनकी तरफ जाते हैं, तो वो तो अच्छा है। अगर वो तरबियत पजीर होना चाहे तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात हो। अगर वो नहीं होना चाहता तो फिर खामोशी से अपने आप को अलग करना। और दूसरी ये बात कि अच्छा शायर होने के लिए क्या करना चाहिए, मैं अपनी नौजवान नस्ल को जो इस मैदान में कदम रखती है, उसके लिए मैं ये कहूंगा कि वो अपने आप को शायर तो कहते हैं, लेकिन सीखने के अमल से नहीं गुजरता, और जो सीखने के अमल से नहीं गुजरता वो अपने आप को शायर कहे भी ना। एक तो ये, दूसरी बात कि अपना मुताला, मुशाहिदा और तालीम पर तवज्जो दें। जब तक वो मुताला और मुशाहिदा नहीं, हर चीज जो है वो आपकी आपकी जात पर हर हादसा नहीं गुजरता। आपका मुशाहिदा जो है दूसरे हादसात को भी आपकी शायरी में कलम बंद करने का सबब होता है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अगर आप अपने जो आपके मेहमान थे उनका शुक्रिया अदा करना मुझे तो करना होता है, अगर आप शुक्रिया उनका अदा करना चाहते हैं तो आप शुक्रिया भी अदा मैं कर लीजिएगा। सबसे पहले तो मोहतरमा प्रोफेसर नूर दयाब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे लिए वक्त निकाला और अपनी खूबसूरत राय से नवाजा, और इसके साथ साथ उन्होंने कलाम पर सैर-ए-असल बहस की। जनाब हमीद हंडी साहब, जिन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ शायराना और माहिराना राय जो है वो दी, और मेरे बारे में, क्योंकि वो काफी देर से हम लोग दोस्त हैं, एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं, तो वो मेरी शख्सियत से भी वाकिफ थे और कलाम से भी वाकिफ थे, तो उन्होंने कम हका उस पर गुफ्तगू की। मोहतरमा आयरन फरत साहबा का, डॉक्टर अली इमरान साहबा का मैं ममनून हूँ कि उन्होंने अपने वक्त में से वक्त दिया, और मेरे लिए उन्होंने जो कुछ भी कहा वो मेरा ख्याल है कि मेरी शख्सियत, मेरी बसात से कुछ ज्यादा ही था जो उन्होंने कह दिया। मैं उन सबका ममनून हूँ, और आखिर में न्यू कैसल क्रिश्चियन नेटवर्क यूके का ममनून हूँ, और आपका भी कि आपने मेजबानी के फराइज निभाए, और न्यू कैसल क्रिश्चियन नेटवर्क से मेरे लिए इस प्रोग्राम को मुरतब किया, ये मेरे लिए एजाज की बात थी। बहुत शुक्रिया। तमाम नाजरीन के लिए ये गुजारिश करूंगा कि आरिफ
परवेज नकीब साहब सिर्फ पाकिस्तान में ही फेमस नहीं है, बल्कि दुनिया के कोने कोने तक इनकी एक जान पहचान है। खूबसूरत शायरी करते हैं, सब रंग जो है वो पाए जाते हैं। तो मेहमानों का शुक्रिया इन्होंने अदा किया। हम फिर शुक्रिया अदा करते हैं आरिफ परवेज नकीब साहब का भी कि वो आए, और इन्होंने जो अपने साथी थे हमीद हेनरी साहब से, नू साहबा थी, इसी तरह अली इमरान साहब थे, फिर आयरन फरज साहबा थे, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और दुआ गो हैं आरिफ परवेज नकीब साहब से, जो पिछले 45 सालों से लिख रहे हैं, और सोशल मीडिया पे हमें हर रोज उनकी एक नई तख्लीक पढ़ने को मिलती है, एक नए ख्यालात मिलते हैं। तो दुआ गो है कि खुदा इन्हें और जोरे कलम अता फरमाए। इजाज़त चाहते हैं, फिर नई किसी मौजूद कलाम या किताब के साथ हाजिर होंगे। टेक केयर, और अपने अदीब, अपने शायर की हौसला अफजाई कीजिएगा। और ये जो एक बड़ा शायर, जो अच्छा शायर, या किसी से दाद लेना दाद ना देना, इन सारी रवशों से ज़रूर बचिएगा। खुदा आप सबका हामी नासिर हो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका।